Hello, dear students. Today I am going to teach you our next part of chapter 5th in computer subject. So here, chapter 5 named Introduction to HTML part 3. So students, आज तक हमने जैसे पिछले दो लेक्चरों से हमने चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू HTML स्टार्ट किया है। HTML के बारे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर सब टैग एलिमेंट्स, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहले उसके हमने एडवांटेजेस देखे, हाउ इट वर्क्स देखा, वेयर इट वर्क्स देखा, उसके यूसेज देखे। ठीक है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक वेब पेज एंड स्टैटिक वेबसाइट। बाकी सारे एडवांटेजेस देखा। फिर हम बात कर रहे थे बेसिक टर्म्स यूज इन HTML। जो बेसिक टर्म्स, कीवर्ड्स और कांसेप्ट है जो बेसिकली HTML में यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले टैग्स देखा, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। हाउ कैन यू राइट योर टैग विद एंगल ब्रैकेट, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट एंड राइट एंगल ब्रैकेट which is known as delimiter। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स देखा, कोई टैग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल फीचर्स। फिर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे जो वेब पेज क्रिएट करने के लिए बेसिक कंपोनेंट है। इट इज अ बेसिक कंपोनेंट फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। So elements are also a very important part for tag and our HTML documents. You can mention different elements of different tags. Basically, there are two types of elements. We can classify our elements in two categories or in two ways. There are two types of elements. First one is container element and second one is empty element. There are mainly two types of element. One is container element and second one is empty element. These are the two main categories. Container element में क्या होता है? Basically, it has a starting and an ending tag. इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग एड होता है। ठीक है। कंटेनर एलिमेंट कंटेन्स starting and ending tag. For example, to make a certain section of the blog, the option tag B and ending tag B are used. क्या होता है इसमें? जैसे कि मुझे यहाँ बोल्ड टैग इस्तेमाल करना है। If I want to write bold tag, if I want to make my font, my text in bold format, so I want to use bold tag, opening of B tag and closing of B tag like this. In between, I will write my text or font that I want to apply. The web browser displays the text enclosed within the opening and closing tags in bold. The web browser displays the text enclosed within the opening and closing tags in bold. क्या है? The web browser displays the text enclosed within the opening और closing tag के बीच में जो हमने text लिखी है उसको बोल्ड फॉन्ट में वो रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ पर? हमारी वेबसाइट कहाँ देखते हैं? वेब ब्राउजर में। ठीक है। चाहे कोई भी वेब ब्राउजर हो, गूगल क्रोम हो, ओपेरा मिनी हो, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो और एनी अदर्स। So this one is container element.
ठीक है, जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के साथ काम करता है। सेकंड वन एम्प्टी एलिमेंट, it has the only opening tag along with its attributes. It contains or it has only one tag, that is opening tag with its attributes. ये एक ही टैग के साथ, एक ही ओपनिंग टैग के साथ काम करता है, उसमें दूसरे टैग की जरूरत नहीं है। It contains only one tag, that is opening tag. For example, ब्रेकरो, का पूरा नाम क्या है? ब्रेकरो। जब भी हमें कोई आउटपुट या लाइन या स्टेटमेंट एक लाइन में से दूसरी लाइन में ले जाना है, या तो मतलब कि हमें हमारा आउटपुट या रिजल्ट नई लाइन में चाहिए, तो हम यहाँ पर br टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। We can use br tag to move our output or line to the next line, ठीक है। So br tag for creating new line, ऐसे ही it can be used directly and does not require any ending tag. So here br tag does not require any ending tag, it only use with its own opening tag, ठीक है। So वो पैर में होना या लिखना जरूरी नहीं है, you can write a single tag, ठीक है। So this one is a elements. There are two types of element that you can classify: container element and empty element. So यहाँ पर हमने बेसिक टर्म्स, सबसे पहले हमने टैग्स के बारे में जानकारी ली, TAGS टैग्स, सेकंड वन इज एट्रीब्यूट्स एंड नंबर 3 इज एलिमेंट। एलिमेंट के लिए दो टाइप्स, दो कैटेगरी देखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट HTML editor। क्या है HTML editor? So here HTML editor is a software application used for creating HTML document। HTML के कोड टैग HTML डॉक्यूमेंट जहां लिखा जाता है और उसको क्रिएट करने के लिए HTML फाइल को हम एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम HTML एडिटर कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जैसे कि हमारे पास काफी सारे एप्लीकेशन हैं, हम नोटपैड की बात कर सकते हैं, चाहे वेबपेड की बात करें, अदर एग्जांपल की बात करें, ड्रीम व्यूअर है, आज के जमाने में फ्रंट पेज है, ठीक है। काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं जिसके जरिए हम HTML डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। So there are two types of HTML editors, namely WYSI, WYG and text editor। HTML editor के दो टाइप्स, WYSIW। WYSIW, what you see is what you get। दूसरा है टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, ये सब हम बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में अवेलेबल एग्जिस्टिंग होता है। और फर्स्ट वन इज WYSI, WYG, what you see is what you get। So here mainly two types of HTML editor। Now let's see the first one। पहला देखते हैं, what you see is what you get। ये एडिटर क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। So here it has an inbuilt features that allows you to quickly design। It has inbuilt features, इसके पास कितने सारे inbuilt features और फैसिलिटी है that allows you to quickly design as well as preview your
हमारे वेब पेज और वेबसाइट को क्विकली डिजाइन एंड डेवलप करने के लिए और उसका प्रीव्यू भी देखने के लिए, व्यू बिफोर व्यू मतलब प्रीव्यू देखने के लिए काफी सारे इनबिल्ट फीचर्स और फैसिलिटी है। The main advantage of this editor is that there is no need to have prior knowledge of the HTML text. इसका मेन वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, आपके पास HTML टैग का बेसिक नॉलेज नहीं है, हाउ टू राइट, वेयर टू राइट, ठीक है, तो भी आप इसका इस्तेमाल करके अच्छी खासा वेब पेज और अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हैं। मीनवाइल यहाँ पर आपको टैग इजीली मिल जाएगा, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको हर एक टैग का नाम या उसका यूज याद रखना नहीं। जबकि आप टेक्स्ट एडिटर में लिखते हो तो आपके सब टैग के नाम, इस्तेमाल और उसकी सिंटैक्स स्ट्रक्चर आपको पता होनी ही चाहिए। सो यहाँ उसका बिगेस्ट एडवांटेज, देयर इज नो नीड टू हैव प्रायर नॉलेज ऑफ HTML टैग्स बिकॉज़ दे आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड। क्यों? ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, ठीक है। Some examples of what you see is editor, what you see is what you get. Editors are the Microsoft Front Page Express, Microsoft Expression, Adobe Reviewer, etc. उसके कौन से एग्जांपल है? तो Microsoft Front Page, Microsoft Expression, Front Page Express, then Adobe Reviewer, ये काफी सारे एग्जांपल यहाँ पर हमारे what you see is what you get के हैं, जिसके जरिए आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। So these are the what you see is what you get type of editor. Second one is text editor. It allows you to write and modify the HTML text directly. It allows, तो आपको अलाउ करता है, बेसिकली आप डायरेक्टली आप टैग लिख सकते हो और आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यूज अ टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करने के लिए वी नीड टू हैव प्रायर नॉलेज और द नॉलेज ऑफ HTML टैग्स। हमारे पास सारे HTML टैग्स का नॉलेज, इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए, then we can write or we can modify. These editors do not generate any HTML code automatically, ठीक है। ये टेक्स्ट एडिटर कभी HTML कोड को या टैग को या वेब पेज को ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करता। Some examples of text editors, टेक्स्ट एडिटर के एग्जांपल कौन से हैं? नोटपैड एंड वर्डपैड, जो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में बेसिकली होता है, इनबिल्ट आता है। So here we have seen HTML editors. There are two types of HTML editors. First one is WYSI. WYSI means what you see is what you get. And second one is text editor. First के एग्जांपल देखे हमने, Microsoft देखा ना, एक्सप्रेशन, फ्रंट पेज, ठीक है, एडोब रिव्यूअर, ये सारे हमने एग्जांपल किसके देखे? यहाँ पर what you see is what you get। और दूसरा टेक्स्ट एडिटर जिसमें नोटपैड और वर्डपैड, ठीक है। सो वैसे ही बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने एलिमेंट के दो टाइप्स, कंटेनर एलिमेंट या एम्प्टी एलिमेंट देखा। फिर यहाँ पर हम HTML एडिटर की बात कर रहे थे, जिसमें हमने WYSI, WYG एंड टेक्स्ट एडिटर डिटेल्स में देखा। और यहाँ पर सबसे पहले हमने बेसिक टर्म्स यूज इन HTML देखी, ठीक है, जिसमें टैग्स, एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स देखा और HTML एडिटर्स के ये दो टाइप देखा। नेक्स्ट कंसेप्ट, क्रिएटिंग एंड सेविंग द HTML डॉक्यूमेंट, कैसे हम HTML डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हैं और बनाए हुए HTML डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन और उसका कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक बच्चों ये सारी चीजें आप देखते रहिए, अच्छी तरह से समझते रहिए। जो भी पॉइंट्स हैं जरूरी वो आपकी टेक्स्ट बुक CW में
आप लिखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।